غیروں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ شیعہ قوم، شیعہ نیشن کا سرمایہ بابا سید نصیر شاہ صاحب کی دعاؤں کا وقت، انہی کا مستقبل۔ دعا ہے کہ مالک ملک پاکستان نہیں بلکہ جہاں پر دنیا ختم ہو جاتی ہے، دعا ہے کہ مالک یہ وہاں سے حسین شروع کرے۔ مالک نے کہا بابا جی کا سایہ ہم سب پر، ان کے بچوں پہ مالک سلامت رکھے اور مزید زیادہ اس سے زیادہ بڑھاتے جائیں۔ 11 اکتوبر بیت الحزن بابا جی کے گھر پورے ملک کے بہترین ذاکر علماء تشریف لائیں گے۔ سب کو شرکت کی دعوت ہے کہ فرما کر اپنے شعور کا تعارف ضرور کروائیے گا۔ شاعر آل محمد، شاعر آل عمران، باغ بطول کی وہ ننھی سی کلی جو انشاءاللہ کھل کر مستقبل میں پھول بنے گی۔ عزت مآب پیر و مرشد بابا سید نالین رضا رضوی صاحب اس منبر پہ آ کے اپنے شعور کا تعارف ضرور کروائیں۔ ان کے فوراً بعد خطیب آل محمد، خطیب آل یاسین، سید بابا سید حسنین مادی آف منیا والا، اور ان کے فوراً بعد مرشد بابا سید ثقلین بادشاہ ٹیڈے والی جناب مولا علی اکبر بادشاہ کے سہرے کی برآمدی کروائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے محسن، تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے محسن، تیرا کچھ کچھ ہے علی، میرا سب کچھ ہے علی۔ عزت مآب بابا سید نالین رضا رضوی آف منڈی فیض آباد، خوشنودی امام زمانہ بادشاہ بلند تر صلوات۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، اگر زحمت کریں تو جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر لجائب تجدہن لک فی النوائب، کل ہم وغم سنجلی بے علی جن بے علی جن بے علی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ جو صلوات پڑھنے کا حق ہے وہ ادا کرتے ہوئے ایک بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھیں۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو سلیمان اور سلیمان کو مسلمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے در کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود کروڑوں سلام ان ہستیوں کے لیے جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو ہر بنایا۔ مولا پاک آپ تمام حضرات مومن مومنات کو اس مجلس پاک پہ تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانین مجلس خالق کونین، ان کی محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر نیاز عقیدہ اور نیت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آپ کے دلوں میں جتنی بھی دعائیں، آپ کی جو دعا ہے مولا آپ کی دعائیں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ میرے سے پہلے بہتر پڑھنے والے پڑھ گئے، میرے بعد اور زیادہ بہتر پڑھنے والے پڑھیں گے۔ یہ سفر ہے ذکر اہل بیت کا، اس میں صرف حاضری لگوانی ہوتی ہے، میں بھی حاضری لگواؤں گا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے بہت اچھا سنیں گے۔ پہلا مصرع عرض کرنے لگا ہوں۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، جو سمجھ جائے میری اس سے بات ہے۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔
जिसे गद्दीर का मौला समझ नहीं आता। चौथे मिसरे पे जो बंदा गद्दीरी बन के बैठा उसका हाथ बुलंद होना चाहिए, बाकियों की अपनी मर्जी। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गद्दीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज। अंकल तवज्जो फरमाइएगा, मैं मिसरा पढ़ूँ, आपने मेरी तरफ तवज्जो फरमानी है। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गद्दीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है। किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। जी आप सलामत रहे, मौला आपका बात इत्तेहाद कभी किसी कमीने के मोहताज ना हो। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गद्दीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। भाई ये पूरा पंडाल उठ के दाद दे, दाद थोड़ी है, बात बड़ी है। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक जवान उठ के दाद दे, दाद थोड़ी है, बात बड़ी है। मौला की कसम, अगर इससे पहले इतने बड़े मिसरे सुनो तो चुप बैठना, अगर पहली बार सुनो तो उतनी कीमत देना जितनी कीमत बनती है। रब्बे हुसैन की कसम माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गद्दीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। फलक से दुम्बे का आना तो समझ आता है, फलक से दुम्बे का आना तो समझ आता है। चौथे मिसरे पे बारगाह की दीवारें बोले तो बोलिएगा वरना चुप रहिएगा। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक, पहले अली वाले से लेके आखिरी अली वाले तक चौथा मिसरा रोह में उतरे और नारा यहाँ से लेके नजफ तक ना जाए तो तासीर की खरैत पे नाज करने का क्या फ़ायदा। फलक से दुम्बे का आना तो समझ आता है, अली का रिश पे जाना समझ नहीं आता। जी आप सलामत रहें, इन शेरों की रौनक हमेशा सलामत रहे। मौला आपको आबाद रखी, इत्तेहाद कभी किसी कमीने के मोहताज ना हो। ये बोलती हुई ज़ुबानें हमेशा सलामत रहें। मैं मौला अली अकबर की बारगाह में हाज़िरी लगाना चाहता हूँ। आप एक कितनी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें जितना आपके करीब आले मोहम्मद हक रखते हैं। पहला मिसरा अर्ज़ करने लगा हूँ, अगर दिल को अच्छा लगे तो दात और दुआ दीजिएगा, वरना कोई जबर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अल्लाह जिसे गौर से देखे उसे हुसैन कहते हैं, अल्लाह जिसे गौर से देखे उसे हुसैन कहते हैं, अल्लाह जिसे गौर से देखे उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन जिसके चेहरे की ज़ियारत करे उसे अली अकबर कहते हैं। जी आप सलामत रहें। अल्लाह जिसे गौर से देखे उसे हुसैन कहते हैं, हुसैन जिसके चेहरे की ज़ियारत करे उसे अली अकबर कहते हैं। वैसे देखा जाए तो अली अकबर एक बहुत अजीम नाम है, पहले अली बाद में अकबर। बुज़ुर्गों से दुआ लेना चाहता हूँ, 4 सतरे पढ़ने लगा हूँ। अगर दिल को अच्छा लगे तो दात और दुआ दीजिएगा, वरना कोई जबर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई जबर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। मैं सिर्फ बुज़ुर्गों से दुआ लेना चाहता हूँ, आपके हाथ बुलंद हो जाएं तो मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाए। अल्लाह जाने, अल्लाह जाने पूरी कायनात में, अल्लाह जाने पूरी कायनात में जिस इंसान के कदमों से उठी हुई धूल का आखिरी ज़रा जबरील की आंखों की बनाई छीन ले उसे अली कहते हैं। पूरी कायनात में जिस इंसान के कदमों से उठी हुई धूल का आखिरी ज़रा जबरील की आंखों की बनाई छीन ले उसे अली कहते हैं। जिसके लिए अंबिया तरसते रहे जन्नत में जाने के लिए उसे अली कहते हैं। जो वैशी को इंसान बनाने का गुर जानता हो उसे अली कहते हैं। फिर इंसान को मुसलमान बनाने का सलीका जानता हो उसे अली कहते हैं। जिसके लिए मुसलमान को सुलमान बनाने के लिए अदना सा मसला हो उसे अली कहते हैं।
जो बेपरवास को शब्बाज बना दे उसे अली कहते हैं। जो अपने दर के गदागर को कलंदर बना दे उसे अली कहते हैं। जो अपने दर के गदागर को कलंदर बना दे उसे अली कहते हैं। लफ्ज़ों को सुनने वालों, लफ्ज़ों को समझने वालों, अली उसे कहते हैं जो मिट्टी से खेलने वाले को पहलौल बना दे उसे अली कहते हैं। जो एक जर्रे को शम्मस बना दे उसे अली कहते हैं। फिर शम्मस को अपनी मोहब्बत से लबरेज करके शम्मस तबरेज बना दे उसे अली कहते हैं। अंकल अगर ये मिसरा ज़ाया हो गया तो यकीन जानिए मेरे दिल को बहुत अरमान लगेगा। मेरे जिगर का खून लग रहा है। जिसके दुश्मन को ना ज़मीन पना दे ना आसमान पना दे उसे अली कहते हैं। जिसके दुश्मन को अली घर बैठे ही अंजाम दिखा दे उसे अली कहते हैं। अगर किसी बंदे का हाथ नीचे रह गया तो दरवाज़ा शाह बिन्त नजब से तासीर मांगने का क्या फ़ायदा। अगर मिसरे ज़ाया हो गए तो यकीन जानिए मैं मिसरे पढ़ना ही छोड़ दूंगा। ज़माने में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बहस पे मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मन की आकबत पहचान लो मोहसिन। जो बंदा ये सोच के बैठा कि मैंने नैन शाह को दात नहीं देनी, वो मुझे दात ना दे, मुझे उसकी दात चाहिए नहीं। लेकिन जिनकी रगों में इश्क़ अली है, जिसके सीने में हक है, फिर उससे दात लेना मेरा भी हक बनता है। फिर उससे दात लेना मेरा भी हक बनता है। रब्बे हुसैन की कसम माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, ज़माने में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बहस में मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मन की आकबत पहचान लो मोहसिन। अली के दुश्मन की आकबत पहचान लो मोहसिन। वो मरते हैं तो उनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती। जी आप सलामत रहे, मौला आपको बात रखे। इत्तेहाद कभी किसी कमीने के मोहताज ना हो, फ़ज़ाइल के साथ मसाइम ना हो तो मजलिस मुकम्मल ही होती। ज़हरा का लाडला बेटा मज़लूम हुसैन नाने की कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ रहा था। पीछे से सिपाही आया, कहा अस्सलाम वालेकुम या इब्ने रसूल अल्लाह। हुसैन ने सिपाही से पूछा क्या करना है। सिपाही ने कहा वलीद ने दरबार में बुलाया है। हुसैन ने कुरान की रेल बंद की, नाने की कब्र की तरफ देखा, सिपाही की तरफ देखा, अबा के दामन से आंखों से आंसू पूंजे, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे ज़ोहर की नमाज के बाद से तेरा इंतज़ार था। वलीद से कहना मैं रात को आऊँगा। ये आवाज़ सुनी अब्बास ने, कमरे बनी हाशिम ने, कहा मेरा मौला कह रहा मैं रात को आऊँगा। घर आया अब्बास, कासिम से कहा, ओन से कहा, मोहम्मद से कहा, अकबर से कहा। 18 शागिर्द थे बनी हाशिम के। क्या कहा? कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहा कि ईशा की नमाज के बाद अपने हुजरों में चले जाना, जब मैं अल्लाह अकबर कहूँ तो वहेली में आ जाना। आवाज़ कोई और हुक्म मौला। अब्बास ने कहा इससे आगे तो मैं भी कुछ नहीं जानता, बस आ जाना। आदत थी जनाब हुसैन की, ईशा की नमाज से फारिग होकर शरीकतुल हुसैन बीबी ज़ैनब के हुजरे की तरफ जाते। बीबी ज़ैनब नमाज से फारिग होकर जनाब ज़हरा की हवेली की दरवाजे की ओट में खड़ी हो जाती। हुसैन मस्जिद से आते, काफ़ी देर तक हुसैन की पेशानी चूमती, फिर घर वापस आ जाती। आज काफ़ी देर खड़ी रही। जब काफ़ी देर खड़ी रही ना, आसमान की तरफ देख के कहती है बारे अलाही खैर हो, काफ़ी रात हो गई है, हुसैन मस्जिद से नहीं आए। सारे बनी हाशिम नमाज से फारिग होकर घरों को चले गए। नाने की कब्र पे हुसैन का नाना मेरा सलाम वलीद ने दरबार में बुलाया है, लगता है चंद दिन रह गए हैं तेरी हाजिरी में। कहा नाना मैं 2-3 दिन का मेहमान हूँ तेरे शहर में। रोते रोते गश खा गया हुसैन। ख्वाब में क्या देखा, जल्दी से उठा, माँ ज़हरा के दरवाजे पे आया, दरवाज़ा वजनी नजर आया। आवाज़ दे के पूछता है कौन? आवाज़ कौन हो सकती है? तेरे हिस्से की बहन ज़ैनब हूँ। हुसैन रोता रहा। बीबी कहती ना रो, 4 रातें हो गई हैं, मैं देखती हूँ तू ईशा की नमाज से पहले उठकर, तू तहज्जुद की नमाज से पहले उठकर बाहर जाकर अल्लाह जाने तू क्यों रोता है।
हुसैन तेरा हाल तेरी आंखें तेरी बहन से छुपा नहीं सकती। हुसैन तेरे रोने का सबब क्या है? दोनों हाथ बीबी ज़ैनब के सर पे रखे, कहा ज़ैनब बहना, अबा के दामन पे बोसा दिया, कहा ज़ैनब बहना वलीद ने दरबार में बुलाया है, सैयदों मुझे माफ़ करना। उस बीबी ने कहा नहीं जाने देती। हुसैन ने कहा मैं जानता हूँ। बीबी ने कहा जब मैं कह रहा हूँ कि वलीद मेरा कातिल नहीं है, मदीना मेरा मक्तल नहीं है, मदीना मेरा मतबा नहीं है, जब कहा ना कि मदीना मेरा मतबा नहीं है, हुसैन ने कभी भी ने कहा ज़रूर जाना है पर जामिन दे के जा। जामिन का नाम है रोने वालों। हुसैन ने ज़ैनब बहना के चेहरे को देखा, कहा ज़ैनब बहना जब मैं कह रहा हूँ कि वलीद मेरा कातिल नहीं है, जब मैं कह रहा हूँ कि मदीना मेरा मक्तल नहीं है, जब मैं कह रहा हूँ मदीना मेरा मतबा नहीं है, बीबी ने कहा जब मैं कह रही हूँ जामिन दे के जा, जब मैं कह रही हूँ मुझे जामिन दे के जा। हुसैन ने कहा ज़ैनब बहना जामिन कैसे दूँ? हुसैन जाने लगा, बीबी का हाथ हुसैन की अबा की दामन में आया, कहा नहीं जाने देती तो कोई जामिन दे के जा। ये मंजर जनाब अब्बास की जोजा ने देखा, अल्लाह जाने कैसे गुजर रही थी। जनाब अब्बास की जोजा खड़े होकर देख रही थी। हुसैन कहता है जाने दे, बीबी कहती नहीं जाने दूंगी, कोई जामिन दे के जा। ये मंजर जनाब अब्बास की जोजा ने देखा, जनाब अब्बास के हुजरे में आई। जनाब अब्बास सोए हुए थे, सीने पे फजल बैठे थे, कभी फजल का दायां रुखसार चूमते, कभी बायां रुखसार चूमते। बीबी ने दरवाजे हुजरे की तो ज़मीन पे बैठ के ज़मीन पे लकीरें खींचना शुरू की। फजल ने देखा, कहा बाबा अम्मा ज़मीन पे बैठी है। अब्बास तड़प के उठा, कहा मेरी ज़िंदगी में तो ज़मीन पे क्यों बैठी है? कहा अब्बास मैं जो देख आई हूँ। हुसैन कहता है जाने दे, बीबी कहती नहीं जाने दूंगी। अब्बास अब तू जाने और फजल जाने, मदीना उजड़ रहा है। अब्बास ने जलाल के आलम में हाथ में तलवार पकड़ी। जब जब अब्बास जनाब ज़हरा की हवेली में आता, ज़मीन में ज़लज़ला था। अब्बास हवेली में आया, ज़लज़ला आया, 18 बनी हाशिम के हमरा हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए हुजरे से बाहर आए। दरवाजे पे क्या मंजर था? हुसैन कहता जाने दे, बीबी कहती नहीं जाने दूंगी, कोई जामिन दे के जा। अब्बास आया, बीबी ने हुसैन के देखा, फिर अब्बास को देखा, कहा अब्बास। बीबी ने अब्बा का दामन छोड़ दिया। अब्बास का एक हाथ हुसैन के कदमों में, एक हाथ बीबी ज़ैनब के कदमों में। बीबी ने हुसैन के अब्बा का दामन छोड़ दिया, कहा हुसैन अब तू जा, तेरा जामिन आ गया। अब्बास ने कहा कैसे जामिन दूँ? अब्बास ने कहा मैं कैसे जामिन दूँ? बीबी क्या हुक्म है? बीबी ने अब्बास को देखा, कहा अब्बास हुसैन को देख, हुसैन का इमामा देख, हुसैन का चेहरा देख, हुसैन की दाढ़ी देख, हुसैन का सीना देख, हुसैन के हाथ देख, जैसे जा रहा है वैसे लूँगी। जब दरवाजे के नज़दीक आया हुसैन, हुसैन ने कहा अब्बास तू यहीं रुक जा। कहा क्यों मौला? कहा मैं जामिन दे के आया हूँ अपनी आका ज़ादी को। कहा अब्बास तो अली का बेटा है, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा खैबर के दरवाजे से ज़्यादा वज़नी नहीं। अब्बास मुझे जाने दे, अगर किसी ने गुस्ताखी की तो मैं अल्लाह अकबर कहूँगा, फिर तू जाने और दरवाज़ा जाने, फिर तू जाने और दरवाज़ा जाने। अब्बास दरवाजे की दहलीज पे बैठ गया। अब्बास का हुसैन अंदर गया। अब्बास के कान हैं हुसैन की आहट पे। वलीद ने कुर्सी पेश की, हुसैन बैठे। वलीद ने कहा मौला माविया मारा गया। हुसैन ने कहा हर शख्स अपने ठिकाने की तरफ जाएगा। ये जवाब था हुसैन का। वलीद ने कहा मौला यजीद तख्त नशीन हो गया। हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा मौला वलीद ने खत भिजवाया है कि हुसैन से कहो मेरी बैत करे, वरना का नाम है हुसैन कुर्सी से उठे। वलीद ने कहा मौला जवाब में क्या लिखूं? हुसैन ने कहा क्या तू नहीं जानता मैं अली का बेटा हूँ? क्या तू नहीं जानता मेरी रगों में अली का खून है? हुसैन मुड़ा। मरवान ने देखा, कहा वक़्त यही है हुसैन को कत्ल कर दे, बाद में हुसैन हाथ नहीं आएगा, वक़्त यही है। हुसैन मुड़ा, कहा तेरी क्या मजाल मेरे नाना के शहर में तू मुझे कत्ल की धमकी दे। बुलाऊं अब्बास को। जब कहा ना कि बुलाऊं अब्बास को, अब्बास का नाम सुना हुसैन की ज़ुबान से अब्बास ने शेर की तरह उठा,
तकबीर की आवाज़ थी, तकदीर की आवाज़ थी। अल हुसैन ने कहा अल्लाहु अकबर। अब्बास ने दोनों हाथ दरवाजे पर रखे, दरवाज़ा घिरा। 18 बनी हाशिम के हमरा दरवाजे से अंदर आए। अब्बास का हाथ कब्जा तलवार पे है। कहा मौला मुझे छोड़ दे, बड़े भाई हसन का जनाजा था, तू दौड़ के आया था, तूने कहा था इसको तलवार न देना, इसने मदीने में नहीं लड़ना है। कहा मौला मुझे पूछ लेने दे, अब्बास की जिंदगी में सहरा के लाल के साथ गुस्ताखी कौन करता है। हुसैन 4 कदम पीछे हटा, अब्बास के सीने पे हाथ रखा। कहा अब्बास मैं हुसैन तुझे कह रहा हूँ। जब देखा नहा कि अब्बास का जलाल ठंडा नहीं हो रहा, अकबर को करीब लाया, अकबर के कान में कुछ कहा। अकबर दौड़ता हुआ गया। अब्बास ने अकबर के अबा के दामन में हाथ आया, हाथ जोड़ के कहता है हुसैन का बेटा हो के नहीं, मेरा शागिर्द हो के बैठा, कहाँ जा रहा है। अकबर ने कहा चचा अब्बास सकीना को लेने जा रहा हूँ। सकीना का नाम आया, अब्बास की तलवार न्याम में गई। अब्बास तड़पा, कहा आज मुझे पूछ लेने दे, जिस सकीना का नाम तू दरबार में सुन नहीं सकता। अल्लाह जाने कितना बड़ा दरबार था। 4.5 साल की सकीना काफी देर खड़ी रही, सारी रात खड़ी रही। सुबह यजीद ने देखा, कहा ये बच्ची कौन है। कहा ये हुसैन की बेटी सकीना है। यजीद ने कहा इसके कानों से खून क्यों बह रहा है। का सज्जाद उठा, कहा यजीद इसे शिमर ने तमाचे मारे।